Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Bete, I hope all of you are hearing me. Yes, ma'am. Okay, bete. So, welcome to your HEAM module. Thank you. And due to these unforeseen and unexpected conditions, we have to switch your module. As you have already learned from Dr. Ghulam Mustafa, who introduced the module. And now I am going to begin with the HEAM content, which we are going to cover in biochemistry. ठीक है? ठीक है बेटे? Yes, ma'am. Okay बेटे. I think I am having some problem sharing my screen with you. Can you see my screen? Can you see the presentation? No. No? No. Okay बेटे. मैम अभी आप होस्ट नहीं हैं, पहले होस्ट बने फिर स्क्रीन शेयर होगी आपकी. Who is the host बेटे? Who is the host? फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास, ये दो खड़े हुए हैं, ये होस्ट और को होस्ट हैं. आप अभी ऐसे ज्वाइन किया है हमारी तरह, तो ये स्क्रीन शेयर नहीं होगी इस तरह से. अब होस्ट हैं आप, अब शेयर होगी स्क्रीन आपकी. ठीक है बेटे. Okay. Now can you see the screen? Can you see the screen now, bete? No, ma'am. No, ma'am. No. Sure. Assalamualaikum. Shared his screen. I think one of you have shared your screen, bete. Muhammad Asad, I think, is sharing. No, ma'am. किसी ने भी शेयर नहीं की.
नहीं No, की? ma'am. Okay, but just a नहीं. moment. Let me solve it first. Okay. मैम शो हो रही है. Okay, bete. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start with our content. This is the chapter number 3 of Lippincott biochemistry, that is globular proteins. Okay, bete. Now in SMS content, we were going to cover our protein chemistry so that you people can have a well-versed version that what is a protein, what type of structure do they have, so that you can understand it. लेकिन अब problem ये है बेटे कि we were not able to complete the SMS module protein chemistry का जो content था, that is left behind. So I will try to share with you a little bit of the structure wherever it is relevant, and then we are going to proceed further. ठीक है बेटे? Yes, ma'am. Okay, now basically we are going to start with porphyrins. ठीक है? Globular proteins में chapter number 3 है Lippincott biochemistry का, मैम and now we are going to begin with porphyrins. मैम जी बेटे. आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम है. Okay बेटे, let me correct it. Now it is clear बेटे? कम है मैम, थोड़ी सी आवाज़ नहीं आ रही सही. अच्छा, आप लोगों ने हेडफोन्स पहने हुए? अब सही, कभी सही हो जाती है, कभी कम हो जाती है. Okay, when many of you will try to speak, मेरे ख्याल में तब कोई hindrance आएगी. Otherwise, if you people stay quiet, there won't be any hindrance. ठीक है? ओके. Okay बेटे. So basically porphyrins होते हैं बेटे, they are cyclic compounds. They are having a ring structure which bind the metal ions. ठीक है? वो ring structure contain करते हैं and they are binding the metal ions. So porphyrin plus metal ion, that is going to give us a metalloporphyrin. That is the metalloporphyrin. Most prevalent metalloporphyrin in human is heme. ठीक है, तो हम porphyrins क्यों पढ़ रहे हैं? Because heme belong to which class? That is, it is a porphyrin. और porphyrin भी कौन सा क्या होते हैं जो bind करते हैं metal ions को, और metal ions कौन सा metal ion present है heme में? That is iron. ठीक है, you all know this. So heme contains one ferrous ion in the center. As you all know that iron has two states, ferrous and ferric. One is reduced form and the other one is oxidized form. So the protoporphyrin 9,
दैट इज अ टेट्रापायरोल. टेट्रापायरोल का क्या मतलब है कि बेटे, टेट्रा मीन्स 4, so it is containing 4 ring structures. And the role of heme, अब heme is not only present in hemoglobin bete, it is present in many of our compounds in the body. अब role of heme हमें क्या बताता है बेटे कि role of heme is dictated by the environment which is created by the 3-dimensional structure of the protein. कैसी प्रोटीन है, क्या है, वो बताएगी कि हीम ने उसके अंदर क्या रोल प्ले करना है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव heme present in hemoglobin, we have heme present in myoglobin, we have heme present in cytochromes, we have heme present in many of the other enzymes like nitric oxide synthase, like peroxidase, like catalase and tryptophan pyrolase. ठीक है बेटे, तो हीम हमारे पास क्या है, इट बिलोंग्स टू पोर्फायरिन क्लास. पोर्फायरिन्स क्या है, जो बाइंड करते हैं बेटे मेटल आयंस को. मेटल आयन अब हीम में कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, और हीम का जो रोल है, जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, दैट इज डिक्टेटेड बाय द प्रोटीन विच इज इन विच इट इज प्रेजेंट. अब हीम अगर आयरन के साथ बाइंड हुई हुई है और उसके अंदर जो मेटल है दैट इज आयरन, और जो उसके अंदर जो रोल उसने परफॉर्म करना है दैट इज कैरिंग ऑक्सीजन एंड डिलीवरिंग इट टू डिफरेंट टिश्यूज, देन दैट विल इज गिवन बाय हीमोग्लोबिन. ठीक है. मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन इज आल्सो अ सिमिलर प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन मसल्स, और उसका बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा रोल है ओनली इन मसल्स. साइटोक्रोम्स में जब ये हीम प्रेजेंट होता है तो दैट सर्व्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर. अभी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में इसका क्या रोल था, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन. साइटोक्रोम्स में ऑल टुगेदर एक डिफरेंट रोल आ गया इसका. वो क्या रोल है, दैट इज इट बिकम्स एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो हम आगे भी अपने अपकमिंग मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे. रेस्पिरेटरी चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें आप लोगों को साइटोक्रोम का रोल और क्लियर हो जाएगा, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते हैं, दे बिकम रिड्यूस्ड, दे बिकम ऑक्सीडाइज्ड. सो दैट इज द रोल ऑफ हीम इन साइटोक्रोम्स. फिर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है बेटे. नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज पेरोक्सीडेज एंजाइम है, विच पेरोक्सीडेज से आपको पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, ये पेरोक्सीडेशन कर रहा है. पेरोक्सीडेशन कर रहा है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है. ये कैटलेज में इसी तरह ये फंक्शन कर रहा है. एंड ट्रिप्टोफैन पायरोलेज एंजाइम. तो ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स एज वी ऑल नो from our prior knowledge as well, कि these are usually proteins except for ribozymes, जो हमने अपने फर्स्ट मॉड्यूल में कवर किया था कि ट्रांसलेशन में ये ribozymes जो है ना वो काम आते हैं. So heme, we are now going to focus ourselves on heme. heme क्या करता है, ग्लोबिन के साथ मिलता है, और ग्लोबिन और heme मिल के क्या बनाते हैं हमारे पास, क्या hemoglobin. This is the structure that we are having iron in the center. ये आवाज नहीं आ रही. Okay, बेटे अभी क्लियर है? Is it better No, now? ma'am. Yes, ma'am. अभी अच्छा ठीक है बेटे. प्लीज एक बार रिवाइज करवा दें स्टार्ट से. Sorry बेटे, what are you saying? मैम पीछे स्टार्ट से ही रिवाइज करवा दें एक बार. Okay बेटे, okay, you have joined now. नो मैम, लेकिन वो सिग्नल का मसला है, पता नहीं. ठीक है बेटे, ओके, मैं ना यहाँ तक कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे से दोबारा स्टार्ट कराऊंगी. ओके. ये आप देखिए, इस पे कंसंट्रेट करो बेटे कि आई हैव टोल्ड यू कि हीम इज अ टेट्रापायरोल. हीम एक टेट्रापायरोल है, तो इसमें 4 रिंग्स हैं, 1, 2, 3 and 4. We have 4 rings over here,
and iron is situated in the center. अब आयरन के पास 4 साइड्स पे it is bonding to nitrogen, but in addition to these 4 sides it can also bind with 2 of its other sides. और वो कौन सी साइड्स हैं बेटे कि एक इसमें I want to show you the structure बेटे. अच्छा यहाँ नहीं है बेटे, स्लाइड में नहीं है, लेकिन you can also have a look in your books as well कि क्या है ये कि 4 sides पे it is bonding to nitrogen, and at 2 sides one is it at one side it is going to bind with oxygen, जो कि इसका फंक्शन है कि ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, और दूसरा जो इसकी लास्ट साइट रह जाती है उसके ऊपर इसने क्या करना है कि इसने बाइंड करना है विद द हिस्टिडीन रेजिड्यू प्रेजेंट इन द ग्लोबिन. ठीक है, हिस्टिडीन रेजिड्यू प्रेजेंट इन द ग्लोबिन प्रोटीन. ठीक है, हिस्टिडीन रेजिड्यू बेटे अभी आप लोगों ने प्रोटीन केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, दैट इज व्हाई आई मस्ट टेल यू हियर कि हिस्टिडीन इज अ बेसिक अमाइनो एसिड. ठीक है, हिस्टिडीन इज अ बेसिक अमाइनो एसिड. बेसिक अमाइनो एसिड का मतलब क्या है बेटे कि इट इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और ये बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होता है इन ग्लोबिन प्रोटीन. जब हिस्टिडीन रेजिड्यूज प्रेजेंट हैं तो इट मींस एट वन साइड iron is going to bind with histidine and at other side it is going to bind with oxygen. ठीक है, ताकि उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो और वो ऑक्सीजन को लेके अपने टारगेट टिश्यूज तक जा सके. सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जिन्होंने अगर लेट ज्वाइन किया है या जिनको मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम था या नेट में, वट एवर वॉज द इशू, एज दीज आर द ऑनलाइन क्लासेस, सो वी विल गो वेरी स्लो and I will try to take you all along with me. कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है बेटे, you can stop me and you can ask questions. So basically porphyrins क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं? हीमोग्लोबिन is a globular protein. ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन में प्रोटीन तो ठीक है, we are going to understand, but उसमें ग्लोबिन is the protein part. और हीम किस क्लास को बिलोंग करता है? हीम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ porphyrins. सो हीम क्या है? दीज आर porphyrins. porphyrins क्या है? दीज आर cyclic compounds that bind with the metal ions. सो porphyrin प्लस मेटल जब ज्वाइन करता है तो हम उसको कहते हैं मेटालो porphyrin. ठीक है बेटे, अंडरस्टैंड? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटे, नाउ हीम के सेंटर में वी आर कंसर्न विद हीम एज अ porphyrin. सो हीम के सेंटर में आयरन प्रेजेंट है. आयरन की बेटे 2 स्टेट्स हैं, वन इज फेरस एंड द अदर वन इज फेरिक. ठीक है, यू ऑल नो दिस. सो protoporphyrin 9 इज अ सब क्लास ऑफ porphyrin जिसको बिलोंग करता है हीम. हीम किस क्लास को बिलोंग करता है बेटे? प्रोटोपोर्फायरिन 9. ठीक है, हीम इज अ पोर्फायरिन और उसकी एक सब क्लास है प्रोटोपोर्फायरिन 9, उसको बिलोंग करता है हीम. अब जो रोल ऑफ हीम है, जो फंक्शन ऑफ हीम है इन आवर बॉडी, दैट इज डिक्टेटेड बाय द प्रोटीन इन विच इट इज सर्विंग. जिस प्रोटीन को ये सर्व कर रहा होता है हीम, उसको वो बताएगा कि व्हाट फंक्शन दिस हीम इज गोइंग टू परफॉर्म. अब उसकी एग्जांपल क्या है बेटे कि दिस हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब इट इज नॉट अ प्रोटीन, इट इज समथिंग एल्स. व्हाट इज इट? इट इज अ porphyrin. तो ये एक ग्रुप है जो कि अटैच हुआ है प्रोटीन के साथ. सो नाउ हीम अगर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में और मायोग्लोबिन में, तो देन इट इज सर्विंग एज एन ऑक्सीजन कैरियर, जो हमने ब्लड में पढ़ना है, जो हमने हीमेटोलॉजी मॉड्यूल में पढ़ना है. साइटोक्रोम्स में अगर ये हीम प्रेजेंट है
तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बेटे? इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है, which is an essential function to perform in our body for the electron transport chain, which is the ultimate system to provide us with energy. अगर ये हमारे एंजाइम्स में प्रेजेंट है, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज, परऑक्सीडेज, कैटलेज, तो ये उनके अंदर अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी एक्टिव साइट का पार्ट बन के। हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है जिसपे सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है। सो हीम इज प्रेजेंट एट दोज एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम जहां पे ये सबस्ट्रेट्स बाइंड करेंगे और रिएक्शंस दे कैन टेक प्लेस। ओके बेटे? ओके अच्छा। मैम। Acha, so that was the structure of heme, iron in the center, binding to 4 nitrogen and 2 of its other sites. 2 इसकी other sites के ऊपर ये bind करता है above the plane and below the plane. एक जगह पे ये bind करेगा with the histidine residue. वो histidine residue हमारे पास कहाँ से आएंगे बेटे? That is coming from the globin protein. ठीक है, ग्लोबिन जिसके साथ बाइंड करना है हीम ने, और क्या करना है? हीमोग्लोबिन बनाना है। फाइन। एक्सक्यूज मी मैम, ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जो अभी आपने बताया ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। ओके बेटे, ये टेट्रापायरोल है, हीम एक, हीम, ओनली हीम, नॉट द हीमोग्लोबिन आई एम टॉकिंग अबाउट। हीम इज अ टेट्रापायरोल। कौन सी क्लास ऑफ परफायरेंस को बिलोंग करता है? प्रोटोपरफायरिन 9 को। आयरन सेंटर में प्रेजेंट है और 4 जगहों पे ये बाइंड कर रहा है विद नाइट्रोजन के साथ, और 2 साइड्स पे, द 2 साइड्स आर रिमेनिंग, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन ऑफ द परफायरिन रिंग। उसमें ये बाइंड करेगा बेटे, वन विद ऑक्सीजन ताकि वो ऑक्सीजन कैरिंग अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, और एट द अदर साइड इट बाइंड्स विद द प्रोटीन। अब प्रोटीन के साथ कौन से अमाइनो एसिड के साथ ये बाइंड करेगा? दैट अमाइनो एसिड इज हिस्टिडीन। कौन सा अमाइनो एसिड बेटे? हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। कौन सा अमाइनो एसिड? वो हिस्टिडीन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास? बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड। वेरी गुड बेटे, एक्सीलेंट, शाबाश, वेरी गुड। मारूफ एंड लाइबा, एक्सीलेंट बेटे। आई होप यू आर टॉकिंग। यस यस मैम। Okay. Acha. So now, moving forward, group of heme proteins बेटे क्या है? Group of specialized proteins है that contain, जी अतीक, जी बेटे, what do you want to ask? मैम काइंडली एक दफा पिछली स्लाइड लगाएं। मैम ये जो पेंटोज रिंग है नाइट्रोजन के साथ, हाँ जी, ये ऊपर और नीचे इसका डबल बॉन्ड जो है वो डिस्प्लेस क्यों है? बाकियों में तो नाइट्रोजन के साथ है और इधर डबल बॉन्ड इसका साइडों पे है। किसका बेटे you are talking about? ये नाइट्रोजन के साथ वाला जो कंपाउंड है। Nitrogen is on 4 sides. यस मैम, ये जो साथ में डबल बॉन्ड है। This one and this one. यस मैम, लेकिन ऊपर और नीचे ये नाइट्रोजन के साथ नहीं है, दूसरी साइडों पे। हाँ बेटे, दिस इज जस्ट, ये एक टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 रिंग्स हैं। ये एक रिंग इस साइड पे, एक रिंग पूरा इस साइड पे, एक इधर और एक इधर। टेट्रापायरोल है हीम। ओके। और दिस इज नॉट अ पेंटागन, ठीक है, नॉट अ पेंटोज। ये Okay. है टेट्रापायरोल। टेट्रापायरोल परफायरिन है और बाइंड करता है आयरन के साथ, किसी भी मेटल आयन के साथ कर सकता है, कॉपर के साथ कर सकता है, जिंक के साथ कर सकता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट हीम, तो हीम में प्रेजेंट होता है आयरन, ठीक है, यस जो कि ग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। और हमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी चाहिए, तो दैट इज व्हाई इट बाइंड्स वन एट वन ऑफ इट्स साइड्स it binds with oxygen and at the other site it binds with histidine residue. That picture is also shown in your Lippincott. ठीक है? ओके You can मैम। see from there. अच्छा जी, now heme proteins है।
Heme proteins are a group of specialized proteins जो क्या कैरी कर रही हैं? They are containing heme as a tightly bound prosthetic group. Heme group of a cytochrome, मैंने आपको बताया, it functions as an electron carrier. जो heme group of catalase है बेटे, that is part of the active site of the enzyme that catalyzes the breakdown of hydrogen peroxide. तो heme जहाँ जहाँ present है बेटे, वहाँ वहाँ it is very different जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है. हीमोग्लोबिन में it is serving as an oxygen carrier. कैटलेज में it is part of the active site. साइटोक्रोम्स में भी हीम प्रेजेंट है, मगर वहां पे it is serving as इलेक्ट्रॉन कैरियर. तो हर जगह पे हीम का रोल हमारी बॉडी में फर्क है. हम किस चीज से कंसर्न्ड है? वी आर कंसर्न्ड विद हीमोग्लोबिन. ठीक है, आगे चलें. आगे चले बेटे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, बेटे. ma'am. Yes, अच्छा बेटे, सो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन मैम गुड में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है. मैम सबको म्यूट कर दें. बेटे अगर इफ यू आर नॉट गोइंग टू म्यूट योरसेल्फ, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगी और सारी क्लास का टाइम वेस्ट होगा. ओके मैम ये कोई आया हुआ है ग्रुप में, इनको निकालें. तो बेटे दैट वी सी, वो आईटी पर्सनल्स जो है वो दे आर गोइंग टू मैनेज इट इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ओके. सो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है, दीज आर द टू मोस्ट अबंडेंट हीम प्रोटीन्स. सबसे ज्यादा अबंडेंट हीम प्रोटीन्स है वो हमारी बॉडी में, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए. हमारे हर टिश्यू को वी नीड ऑक्सीजन. ओके, सो हीम ग्रुप बाइंड करता है ऑक्सीजन को रिवर्सिबली. दे बाइंड विद द ऑक्सीजन रिवर्सिबली, रिवर्सिबल बाइंडिंग करता है. और उसके बाद क्या करता है कि हीम प्रोटीन्स आर, they are rapidly synthesized and degraded as well. तो वो डिग्रेड भी होती हैं और सिंथेसाइज भी होती हैं, तो उनका डेली टर्नओवर रहता है. हाउ मच ऑफ इट इज, जो उसका टर्नओवर है, 6 to 7 ग्राम of hemoglobin is synthesized each day to replace heme that is lost through the normal turnover. तो नॉर्मल टर्नओवर से जितना हमारे हीम लॉस्ट हो रहा है उतना ही सिंथेसाइज भी हो जाता है विद इन द बॉडी. अच्छा जी, along with turnover of heme protein, there is simultaneous synthesis and degradation of other porphyrins and recycling of the bound iron. अब जो आयरन है हमारी बॉडी में, that is not lost, और उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है. हीम का टर्नओवर होता रहता है और जो आयरन है दैट इज नॉट लॉस्ट, बल्कि क्या होता है, लॉस्ट होने की बजाय वो वही आयरन रीयूज और रिसाइकल हो जाती है. ओके बेटे. तो वी हैव डन के हीम इज अ टेट्रापायरोल. टेट्रापायरोल है तो इसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स हैं. और किस तरह वो लिंक हुआ होता है? These are linked by the methynyl bridges. मैम आई एम सॉरी टू से बट वही डिस्टरबेंस हो रही है मैम. मैम यहाँ पे मैसेजेस ऊपर से आ रहे हैं और ऊपर से आप बोल रहे हैं, क्या करें? मैसेजेस को देख ले या फिर लेक्चर को सुन ले. पता नहीं ये कौन है. बेटे आप अजीब मैसेज आ रहे हैं. कोई सॉन्ग लगा रहे हैं. सारा अली खान है, वो शायद मे भी मैसेजेस कर रही हैं बहुत. डू नॉट डिस्टर्ब आप लोग लगा लो, फिर नहीं ये कर नोटिफिकेशंस. यार प्लीज जरा फोन यूज करो अपने. मैम आप म्यूट कर दें सबको प्लीज. बेटे ओके मैम लास्ट स्लाइड प्लीज रिपीट कर दें प्लीज. अच्छा बेटे, ये यही वाली स्लाइड है बेटे, यही वाली स्लाइड है. सो porphyrins are formed by 4 pyrrole rings which are linked by the methynyl bridges. ठीक है, ये नेक्स्ट में बेटे मैं आपको शो करती हूँ. ये आपके पास porphyrin है
कौन सा पोरफायरिन है? प्रोटोपोरफायरिन 9 है हीम। और इसमें कितने रिंग्स हैं? 4 रिंग्स हैं बेटे। और आयरन सेंटर में है इसके। और कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है इसके साथ? इसके साथ बेटे विनाइल ग्रुप अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और प्रोपियोनेट ग्रुप अटैच है। अब यू ऑल नो कि विनाइल क्या होता है बेटे? दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। मिथाइल ग्रुप CH3 होता है और प्रोपियोनाइल इज CH2 CH2 COOH। ठीक है, समझ आ गई बेटे कि कौन कौन से ये प्रोटोपोरफायरिन है? प्रोटोपोरफायरिन में 4 रिंग्स हैं। 4 रिंग्स में इसकी जो साइड चेन्स हैं इसकी, ए आर मिथाइल, विनाइल एंड प्रोपियोनेट। मिथाइल क्या होता है बेटे? दैट इज CH3। विनाइल क्या होता है? दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। और प्रोपियोनाइल क्या होता है? CH2 CH2 COOH। समझ आ गई बेटे? दीज आर द साइड चेन। ये साइड चेन्स है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ हीम है। मैम ये दोबारा से थोड़ा समझा दें। अच्छा बेटे, कौन हु इज दिस? अब्बास खान मैम, स्ट्रक्चर अब्बास खान सर। ओके अब्बास बेटे, ये एक प्रोटोपोरफायरिन 9 है हीम। पोरफायरिन तो समझ आ गया ना कि जो बाइंड करते हैं मेटल आयंस को। यस मैम। और जो प्रोटोपोरफायरिन 9 है उस क्लास को बिलोंग करता है हीम। ठीक है, ये हीम है। इसके 4 रिंग्स हैं बेटे, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और 4। जो सेंटर में है बेटे दैट इज आयरन। ओके मैम। जो इसके साइड चेन्स हैं बेटे, साइड चेन्स में दैट इज मिथाइल, सॉरी मैम, आवाज नहीं आ रही मैम। बेटे जो साइड चेन्स हैं दैट इज मिथाइल, विनाइल एंड प्रोपियोनेट। सही है। मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है बेटे? दैट इज CH3। विनाइल ग्रुप ओके कौन मैम। सा होता है बेटे? दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। और जो प्रोपियोनाइल ग्रुप होता है बेटे दैट इज CH2 CH2 COOH। ओके फाइन। यस मैम। मिथाइल ग्रुप पे CH3, विनाइल ग्रुप पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्रोपियोनाइल Yes. इज CH2 CH2 COOH। ये इसकी साइड चेन्स है ऑफ हीम। अच्छा जी, नाउ एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे। मैम ये आप सबको म्यूट कर दें क्योंकि यहाँ पर एक बंदा वो कर रहा है। मैम ये मौलाना तारक जमील ने बहुत तंग कर लिया है ना, आप ज्यादा सबको शौक म्यूट है कर दें म्यूजिक तो का। हम सुन लेंगे, क्योंकि हमें समझ फिर नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आती। वो वहां से गाने लगाता है, नात लगाता है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। मैम मौलाना तारक जमील के लिए क्लास लेना म्यूजिक की, इसको तो ज्यादा आप शौक है। सबको म्यूट कर दें, अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो वो हैंड रेज कर लेगा। आप सबको म्यूट कर दें एक दफा। लेकिन मैम फिर यहाँ से मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। मैसेजेस को म्यूट कर लो। वो म्यूट कर दो मैसेजेस को, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए, हमें आवाज से डिस्टर्बेंस है। जी बेटे, अभी तो टुडे इज माय फर्स्ट ऑनलाइन सेशन विद यू पीपल। इंशाल्लाह दिस विल बी केटर्ड टुमारो। मैं इसका कोई ट्यूटोरियल या वो वीडियो देखती हूँ बेटे, एंड इंशाल्लाह आई विल मैम आपके पास मैनेज पार्टिसिपेंट्स का एक ऑप्शन होगा, इफ यू कैन लुक एट इट राइट नाउ। उधर जाएं तो वहां पे ऑप्शन होगा म्यूट पार्टिसिपेंट्स। म्यूट पार्टिसिपेंट्स, म्यूट ऑल। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटे, ओके ओके। नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर कि यहाँ पे बेटे अब हमारे पास साइड चेन्स है। साइड चेन्स मैंने आपको बताया कि वी हैव 3 नंबर विच आर मिथाइल, विनाइल एंड प्रोपियोनेट। मिथाइल जो है दैट इज CH3, विनाइल इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जो प्रोपियोनेट है बेटे दैट इज
CH2 COOH. अच्छा जी, so side chains they are ordered. अब वो ऑर्डर हुई नहीं है, किस तरह ऑर्डर हुई नहीं है बेटे? दिस यू कैन सी over here. ये बेटा order Navida, Rakshanda here. जी जी रक्षंदा, हाउ आर यू? ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था Okay. इसमें ऑडियो में। वॉइस में अभी ठीक है? अभी तो आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। चले, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो पार्टिसिपेंट्स जो थे दे वर अनम्यूटेड और वो मुझे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया उनको म्यूट करने में, लेकिन नाउ आई थिंक आई हैव म्यूटेड ऑल ऑफ देम। हाँ जी, पार्टिसिपेंट्स म्यूट हैं। There was a disturbance from Marukh. I have put her on hold. चले ठीक है जी। So she'll वहाँ not पे be able. So वहाँ anyone who's making an issue, I'm putting the person on the hold. They'll not be able to join the class. so nice of you, so kind of you, Yep. Prashanta, so kind of you for your help. No worries. I'm here with you. Thank you. Thank you very much. अच्छा जी, so second year, this is the structure and these side chains बेटे, as you can see ये side chains हैं, मिथाइल है, विनाइल है, मिथाइल ग्रुप है, प्रोपियोनेट है, मिथाइल है, so they all are arranged, ठीक है, ये अरेंज हुए हुए। अब आप यहाँ से देखना शुरू करें रिंग नंबर 1 से, so that is the methyl chain and vinyl chain, okay, methyl vinyl, methyl vinyl, methyl propionate, so they all are arranged। लेकिन रिंग नंबर 4 में बेटे क्या होता है प्रोटोपोरफायरिन के स्ट्रक्चर में कि जो इसकी अरेंजमेंट है दैट गेट्स रिवर्स्ड। अब वो कैसे अरेंजमेंट रिवर्स हुई? यू कैन सी दैट इट बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज। आना क्या था? मिथाइल ग्रुप आना था बेटे, यहाँ पे मिथाइल पहले है, ठीक है। इन रिंग नंबर 1 मिथाइल इज द फर्स्ट वन, इन रिंग नंबर 2 मिथाइल इज द फर्स्ट ग्रुप, in ring number 3, okay, Linta, I'm going to answer your question, wait a minute. So methyl group is the first, but in ring number 4 what is happening? That what happened that the arrangement got reversed, okay जी। हाजरा, लिंटा एंड राफिया, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है हमारे पास साइड चेन्स की बेटे क्या है कि दैट इज गोइंग क्लॉकवाइज। उसमें हमारे एक्सक्यूज मी मैम मैम मारूफ को निकाल दिया और मारूफ डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, वो तो कोई और था एंड उसको बाहर निकाल दिया मैम ने। Yes, ma'am. Maruk told you how to mute participants. And she is not attending the lecture right now. we'll solve it later. उसकी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये LMS पे चला जाएगा, she can listen from there और LMS पे ये पोस्ट भी हो जाएगा। लेकिन the host identified, the IT personnel identified कि यहाँ पे जो हमारी IT support है रक्षंदा जमान, she identified that the disturbance is coming from Maruk। मैम हमने गलत बंदे को आइडेंटिफाई किया, द पर्सन हु इज क्रिएटिंग डिस्टरबेंस वो किसी और नाम से आया हुआ है, तो उनको म्यूट करना चाहिए। इंस्टेड मैम ने मारूफ अपने नाम से आई है उसको निकाल दिया। ठीक है बेटे, there was a I can see the chat what is happening and there was couple of persons ma'am. There were no good comments about Marukh, that's why I did it. So I have the chat with me. I can see all the chat you guys are doing. So I would suggest rather concentrate on the lecture. I have put her off the hold. If Marukh is back, she's in the lecture again. If this Maulana Tariq Jamil is not yours, is not the one, I can take that person off. जी, this Tariq Jamil person, this you can take away, Rakshanda, because all the classes think that this person is making noise. Thank you very much, Rakshanda. Thank you. अच्छा जी, okay sir, first coming back to lecture, आपका ये बेटे क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो साइड चेन, we come back to the lecture, concentrate, don't waste time because we have limited time बेटे, ठीक है। आपका बहुत टाइम जाया हो जाएगा ऐसे, concentrate on the content।
यहाँ पे बेटे एज यू कैन सी कि आपकी जो साइड चेन्स चल रही हैं बेटे, दे आर अरेंज्ड क्लॉकवाइज। मिथाइल पहले आ रहा है, फिर विनाइल, मिथाइल ग्रुप पहले आ रहा है, फिर विनाइल, मिथाइल ग्रुप पहले आ रहा है, फिर प्रोपियोनेट। लेकिन जो फोर्थ में है उसमें अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। प्रोपियोनेट इज कमिंग फर्स्ट एंड देन द मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब है कि अगर फोर्थ ग्रुप में हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ जो साइड चेन्स हैं दैट इज ऑपोजिट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इस वाले पोरफायरिन को कहेंगे इट इज प्रोटोपोरफायरिन 9। हम कैसे इसको लेबल करते हैं प्रोटोपोरफायरिन 9? अगर फोर्थ ग्रुप में एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो साइड चेन्स की। अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड बेटे, ठीक है? अच्छा जी, Yes, नाउ ma'am. ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ योर बुक कि यहाँ पे सारा जो प्रोटोपोरफायरिन 9 है उसमें अरेंजमेंट जो है वो हो रही है क्लॉकवाइज, बट देन इट गेट्स रिवर्स्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द हीम। So coming to the structure of myoglobin, myoglobin बेटे प्रेजेंट है हार्ट में और स्केलेटल मसल में, which I have told। और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लड। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये दोनों के दोनों रेजर्वोयर ऑफ ऑक्सीजन है एंड दे इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विद इन द मसल सेल, ठीक है? एंड they consist of a single polypeptide chain. They consist of a single polypeptide chain. Okay. मायोग्लोबिन जो होता है उसके पास एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। इस वजह से हम पहले इसके स्ट्रक्चर को कर रहे हैं so that you people can understand it and relate it to the structure of hemoglobin. So myoglobin is a single polypeptide, जबकि हीमोग्लोबिन के पास हमारे 4 polypeptide chains हैं, 4 polypeptide chains. So 80% of the myoglobin is alpha helical structure. Alpha helical structure का मतलब क्या है बेटे? कि it is containing hydrogen bonds, it is arranged as a helix, और as it is helix, तो helix बड़ा smooth होता है बेटे, ठीक है? Helix is very smooth, turn हो रहा होता है, a very smooth turn is taking place in a helical structure. तो alpha helix जो होता है that is terminated by proline, beta bands and beta loops, ठीक है? तो 80% जो मायोग्लोबिन है that is alpha helical structure. Alpha helical structure का क्या मतलब है बेटे? कि it is स्मूथ टर्निंग, जैसे आपने डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर किया था। तो अब जहां पे भी उसमें एक ज्योमेट्रिकल प्रोलीन आएगा बीच में, तो दैट विल बी टर्मिनेटेड। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स जो होते हैं प्रेजेंट इन द इंटीरियर, वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द दैट मायोग्लोबिन and they are stabilized by hydrophobic interactions. अच्छा जी, और जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं they are present on the surface. नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इंटीरियर में, पोलर अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं on the surface so that they can interact with the outer environment. अब हीम कहाँ प्रेजेंट होता है बेटे? हीम जो है that lies in a crevice. crevice का क्या मतलब है बेटे? it means, the crevice means एक गहरी खाई, एक घाटी, एक बहुत deeply centered एक place. So बहुत protected environment में this heme is lying, which is surrounded by non-polar amino acids. So there are 2 histidine residues, 2 histidine residues हैं हमारे पास। मैंने आपको बताया है कि what are these histidine residues? They are basic amino acids or they are abundantly present in the globin.
So these histidine residues, one of them, they bind directly to the iron, and second histidine residue, it stabilizes the binding of oxygen to the iron. तो रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है. रिवर्सिबल का क्या फायदा है बेटे हमारी बॉडी में कि रिवर्सिबल बाइंडिंग, लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है, वहां से वो लेके जाएगा हीमोग्लोबिन टू द टिश्यूज जहां पे ये जरूरत है, और जहां पे ये जरूरत है बेटे वहां पे lesser concentration of oxygen is present, so it will dissociate from oxygen and deliver it there. जहां पे हमारे टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जहां पे हमारे टिश्यूज में जरूरत है ऑक्सीजन की, where there is more hydrogen present, there is more carbon dioxide present, तो वहां पे ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा, वो वहां पे टिश्यूज में रह जाएगा, और हीमोग्लोबिन वापस कैसे आएगा? By carrying hydrogen ions from the tissues, by carrying carbon dioxide from the tissues. Okay. अच्छा जी, this is a crevice. ये ग्लोबिन के ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है. अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्रेविस में बिल्कुल सेंटर में बहुत डीप डाउन इनसाइड is present heme. Heme is containing which metal? It is containing iron. और heme belongs to which class? It belongs to protoporphyrin 9. हम कैसे कहेंगे कि वो protoporphyrin 9 है? कि इसके अंदर जो clockwise arrangement of side chains हुई होती है, that gets reversed in the third ring. So there is anti-clockwise arrangement of the side chains in the protoporphyrin 9. To which class belongs the heme? यहाँ तक clear हो गया बेटे? Yes, ma'am. Okay, very well done, good बेटे. Now we come to the structure of hemoglobin. ये myoglobin का structure था बेटे, जिसमें सिर्फ एक polypeptide chain है, जबकि hemoglobin में 4 polypeptide chains होती है. It has 4 subunits. 4 subunits हैं, तो it has 2 alpha chains and 2 beta chains. 2 alpha chains हैं हमारे पास और 2 beta chains हैं हमारे पास. ये कैसे join हुई है? They are joined together by non-covalent interactions. Each chain is thrown into the alpha helical stretches. Alpha helical stretches क्या है? वही helix जो myoglobin में थी. कैसे टर्मिनेट हो जाता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर? अगर इसमें प्रोलीन आ जाए. प्रोलीन क्यों आ जाए? कि प्रोलीन का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इट इज किंकी, इट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन अ स्मूथ टर्न, तो वो बहुत किंक वाला बिल्कुल शार्प पॉइंटी होता है. सो इट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन दैट हेलिकल स्ट्रक्चर. अच्छा जी, जो 2 अल्फा हैं और 2 बीटा हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म द डाइमर्स. एक अल्फा और एक बीटा से बना एक डाइमर, और एक अल्फा और एक बीटा चेन से बना दूसरा डाइमर. सो अल्फा बीटा 1 एंड अल्फा बीटा 2, अल्फा बीटा 1 डाइमर एंड अल्फा बीटा 2 डाइमर. सो वी हैव 2 डाइमर्स दैट मेक्स टोटल ऑफ 4 polypeptide chains in the hemoglobin. और कितने डाइमर्स हो गए? डाई मीन 2, और डाइमर का मतलब है कि उसके अंदर भी 2 चीजें हैं. ठीक है. सो एक अल्फा बीटा डाइमर एंड द सेकंड अल्फा बीटा डाइमर गोइंग टू मेक अस 4 chains, 4 polypeptide chains in the hemoglobin. अच्छा जी, अब ये एक मायोग्लोबिन. जी बेटे. मैम 2 डाइमर्स जो हैं वो 4 chains बनाएंगे? ना बेटे, 4 chains are going to make 2 dimers. Okay, thank you ma'am. अच्छा, 4 chains कौन सी हैं बेटे? 2 अल्फा है हमारे पास और 2 बीटा है. ठीक है, 2 अल्फा chains हैं, 2 बीटा chains हैं, और एक अल्फा और एक बीटा आ गई एक डाइमर में, एक अल्फा और एक बीटा आ गई सेकेंड डाइमर में. ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम. ओके. अब एक मायोग्लोबिन था हमारे पास, तो उसके अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन था,
एक पॉलीपेप्टाइड चेन था तो उसने एक हीम मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया, लेकिन हमारे पास हीमोग्लोबिन में देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो हमारे पास 4 हीम है। जब हमारे पास 4 हीम है तो दे आर गोइंग टू बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दे आर गोइंग टू बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इंटरचेन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, और आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन द चेन्स। अब ये अल्फा बीटा के बीच की बात हो रही है बेटे, जो अल्फा और बीटा चेन्स के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो कौन सी हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, आयोनिक बॉन्ड्स हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अच्छा जी, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, अल्फा बीटा डाइमर 1 एंड अल्फा बीटा डाइमर 2। ठीक है, ये भी आपकी बुक का बेटे डायग्राम है। अल्फा बीटा डाइमर 1 जो है इसके अंदर एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन, और अल्फा बीटा डाइमर 2 के अंदर भी एक बेटे अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है। आयोनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस प्रेजेंट है। ठीक है, इन बिटवीन द चेन्स। अब हमारे पास क्या होता है कि वी हैव 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स है हमारे पास। वन इज द टी फॉर्म एंड द अदर वन इज नोन एज द आर फॉर्म। टी फॉर्म को हम कहते हैं टॉट फॉर्म, टॉट या टाइट। ठीक है, टॉट मीन्स टाइट, बिल्कुल टाइटली बाउंडेड टू ईच अदर। तो टी फॉर्म है या फिर आर फॉर्म है। टी फॉर्म क्या होता है बेटे कि टी फॉर्म इज द डीऑक्सी फॉर्म and it is the low oxygen affinity form. ठीक है, it is the low oxygen affinity form. Ionic and hydrogen bonds are strongly interacting. अब ये deoxygenated form है ना बेटे, तो it is low oxygen affinity form. ये इसके पास affinity नहीं है to bind with oxygen, और ionic and hydrogen bonds are strongly interacting. यहाँ पे देखें बेटे, ये आयोनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दे आर स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग, और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं बिटवीन द डाइमर्स। ठीक है, समझ आ गई बेटे? एंड आर फॉर्म, द सेकंड वन इज द आर फॉर्म विच इज द रिलैक्स्ड फॉर्म। बिल्कुल रिलैक्स्ड फॉर्म होती है। अब वो रिलैक्स्ड फॉर्म है तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑक्सीजन के लिए जगह है, so oxygen will come in, it will bind, और high oxygen affinity form है and it will break down the ionic and hydrogen bonds. ये देखें बेटे, कुछ रह गए, यहाँ पे ज्यादा थे, यहाँ पे only few are remaining. ठीक है, only very few are remaining over here. ठीक है, समझ आ गई? So we have heme. Heme belongs to the porphyrin class. Porphyrin में it belongs to the subclass of protoporphyrin 9. Protoporphyrin 9 हम इसको क्यों कहते हैं? Because of the arrangement of the side chains. Side chains में इसके पास मिथाइल, विनाइल और प्रोपियोनेट है, प्लस एसीटेट। 4 चेन्स है इसके पास। अब हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप, प्रोपियोनेट, तो हमारे पास एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होती है। अगर रिंग 3 में ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो वी कॉल इट टू बी द सब क्लास ऑफ प्रोटोपोरफायरिन 9, और इस प्रोटोपोरफायरिन 9 को बिलोंग करता है हीम, जिसमें रिंग नंबर 3 में रिवर्स्ड अरेंजमेंट है ऑफ एसीटेट एंड प्रोपियोनेट। अब हमारे पास जो मायोग्लोबिन है उसके पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर वी हैव 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो मायोग्लोबिन सिर्फ मसल्स में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट ऑल ओवर इन द ब्लड। मायोग्लोबिन के पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो दैट इज व्हाई इट ओनली हैव 1 हीम,
so it can have one iron which can bind with one oxygen molecule. लेकिन हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो 4 हीम है और 4 हीम है. ओके समीर, आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन बेटे, जस्ट अ मिनट. तो अगर हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो वी हैव 4 हीम. 4 हीम है तो वी हैव 4 आयरन. 4 आयरन है तो इट कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू द टारगेट टिश्यू. अब जो स्ट्रक्चर ऑफ क्योंकि मायोग्लोबिन तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर, सो दे आर अरेंज्ड इन डाइमर्स. डाइमर का मतलब है कि एक के पास 2 चेन्स हैं और दूसरे डाइमर के पास भी 2 चेन्स हैं. तो अल्फा बीटा डाइमर 1 एंड अल्फा बीटा डाइमर 2, और इसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं और स्ट्रॉन्ग आयोनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द डाइमर्स एंड इन बिटवीन द चेन्स. दिस स्टेट इज नोन एज द टी स्टेट, टॉट स्टेट या फिर डीऑक्सीजनेटेड स्टेट. लेकिन जब ऑक्सीजन अंदर आ जाती है तो दिस बिकम्स द रिलैक्स्ड फॉर्म, R form, in which the ionic and hydrogen bonds are weaker. जी समीर, what's your question? मैम जो लेफ्ट साइड वाला जगह वहां पर लिखा हुआ है वीक आयोनिक बॉन्ड्स, आप कह रही हैं कि स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स हैं, तो वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है लेफ्ट साइड पे? रिलेटिव बेसिस पे देखो बेटे, रिलेटिव बेसिस पे, कंपैरेटिव बेसिस पे देखो, यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है? लेफ्ट पे ज्यादा है. टी स्टेट में ना, टी स्टेट जी. तो रिलेटिवली आई एम टॉकिंग कि वैसे तो आयोनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते ही बेटे वीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी वीक होती है. ओके, ठीक है. रिलेटिव बेसिस पे इन बिटवीन द टू स्टेट्स, टी स्टेट में बिल्कुल आर स्टेट में रिलेटिवली ये सिर्फ हो रहा है. अदरवाइज आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये कोई कोवलेंट इंटरेक्शंस तो नहीं है, ये तो नॉन कोवलेंट है. बिल्कुल सही है. They are weak. Hopefully you understood today's lecture. जो disturbance yes ma'am, inshallah we'll try to avoid it next time, and yes, please better go through this lecture. Tomorrow we'll do a short revision first and inshallah move. okay ma'am, okay ma'am. thank you ma'am. Excuse me मैम. जी बेटे, जी बताएं. मैम इसका लेक्चर ये LMS पे अपलोड हो जाएगा प्लस रिकॉर्डिंग के साथ? इंशाल्लाह क्यों नहीं, जरूर होगा बेटे. मैम अगर स्लाइड से इसको कवर कर ले तो हो जाएगा. बुक्स नहीं है हमारे पास बेटे. लिपिन कोड नहीं है? नो मैम, वो तो हॉस्टल में है. ओए होए, ये तो बेटे बड़ा गलत है. तो फिर अभी तो लेक्चर ही पढ़ो. इसमें मैम बहुत बच्चों की वहीं पे है यार. वो PDF से कॉपी करा लेना, लेक्चर PDF से कॉपी करा ले. PDF से हम कौन सा लेक्चर कॉपी करेंगे यार? यार कोई दो चैप्टर कॉपी करेंगे. बंद नहीं है. लिपिन कॉर्ड से PDF फाइल में है, मैं सेंड कर देती हूँ, वहां से कर लें. PDF में है मेरे पास. जो PDF में लिपिन कॉर्ड है ना, उससे तो पढ़ो ना. ऑनलाइन PDF मेरे पास भी बुक नहीं है बेटे इस वक्त. आई हैव जस्ट द ई बुक. तो ई बुक से डाउनलोड करो बेटे ये लिपिन कॉर्ड और स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देयर. 3rd चैप्टर. मैम मैम वी आर वेरी सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस जो क्लास के दौरान हुई थी. मैम नेक्स्ट टाइम वील अश्योर कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा. वी आर रियली सॉरी. गुड अलीज़े, शाबाश बेटे. इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ इट. टेक केयर ऑफ इट. ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू मैम. गाइस जिसके पास PDF में पढ़िया वो प्लीज ग्रुप में सेंड कर दे. कर देती हूँ.